Good afternoon. I'm Amreen Yusuf. I'm working as a research fellow with Jammu and Kashmir Policy Institute. With me is my colleague Tawsif Rena. We are here conducting on a research study which aims to understand how religious leaders and local media houses are engaging during the COVID-19 crisis in order to support public health measures. Please introduce yourself and tell us which media organization you are associated with. I am Bashir Manzar. I am editor of Kashmir Images, a local English language daily newspaper. Sir, tell us a bit about the reach of local media houses and organizations in Kashmir. See, this is if you see the Kashmir, Jammu and Kashmir's entire union territory, it is the local media which has the wonderful reach, which reaches every corner, every nook and corner of the Jammu and Kashmir, particularly Kashmir Valley. Because local media always is very important in comparison to other medias, because local media is the only medium through which people can just highlight their issues and other things. So national media doesn't have that kind of space for them. So that way, local media has wonderful reach in entire Kashmir. Sir, what's the viewership and readership like? Can you give us approximate numbers? Any target group that your organization focuses on? See, as I earlier said that local media has the wonderful reach in entire Kashmir. I cannot give you specifics about the numbers and whatever, but if you see in Kashmir, particularly I will talk about Kashmir region, you have two kind of newspapers. One is English language, another is Urdu, vernacular language. So if you go to the elder generation, they are more affiliated with the Urdu journalism, Urdu newspapers and Urdu medium. But the English, because it's very recent entry into Kashmir journalism, English journalism, it started around 93. So young population is more affiliated and associated with English journalism. So English is catering to the aspirations or whatever, tastes of younger people, whereas Urdu is traditional and old folks go for Urdu newspapers. Is there any active culture of religious leaders utilizing local media platforms to speak about community concerns related to education, health, or any other development indicators? Yeah, see, be it religious leaders, be it social leaders, be it political leaders, local media is the only medium through which they approach the people, they will reach out to the people. And media and all these kind of leaders, they have a communication between them, because what is media? Media is basically messenger. It carries the message, and whenever they have to carry some message to the public or public good, media becomes the only medium. That way, media is always associated, related, and in communication with all kind of these leaders, be it political, social, or civil society actors. Pandemic in Jammu and Kashmir, alongside an ongoing 4G ban, internet ban, that has been continuing for over a year now. How important do you think that local media has become for information dissemination to support public health measures in such circumstances? See, you see this in Jammu and Kashmir particularly, the local media has played a wonderful role in informing people whatever is happening regarding the pandemic. As you mentioned yourself, that 4G ban, because people don't have that free access to the internet. They don't have that free flow of information coming in because of this internet, these problems. They depend on local media. Whatever the measures are to be taken, this is the local media that informs them. Whatever the measures the government is initiating, this is the local media that informs them. Whatever the measures the health organizations are suggesting, this is the local media that informs the public. For instance, if you take my newspaper, we have dedicated a lot of space to the whole thing, because there are 2-3 factors in it. One is the situation, what's happening here, what's happening world over regarding COVID. That's number one. Number two is what is to be done and what's not to be done, do's and don'ts. Three is making opinions, building opinions, making people aware. Fourth is that keeping people aware of the latest researchers, what scientists are doing. So local newspapers have been doing all these things regularly, because they know the limited flow of information in absence of 4G that the people have. What are the challenges you have faced in the light of circumstances, especially with respect to COVID-19 restrictions? See, it's everywhere.
everybody has faced those kind of problems, particularly for a news organization. It was much more difficult because you are news gatherers. You have to gather the news, but the situation is so difficult and so complicated that moving out of homes is a big risk. On one hand, we are preaching, we are telling people not to move out, try to minimize their movement. On the other hand, we are news gatherers. We have to go out and collect the news. So media faces all these things. We try to tell our boys and girls to work from the home. But work from the home, it could be a very good cliche as far as cliche is concerned. But for a news organization, it's very difficult. Because news, you cannot collect news staying in the room. So our boys and girls have taken tremendous risks to cover what is happening, what's happening where. So it has been a challenging job, it is challenging, and it will continue to be challenging unless some vaccination or whatever cure comes. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, अपने और अपनी तंजीम के बारे में मुख्तसरन वजाहत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शेख अब्दुल रशीद दाऊदी के नाम से मुझे लोग जानते पहचानते हैं। तो मैं एक दीनी और समाजी खिदमत गुजार समझ लीजिए। दीन की खिदमत और आवाम की खिदमत हमारा बुनियादी मुद्दा मकसद है, और इसीलिए हमने तहरीक की बुनियाद भी डाली है 2005 में। सौतुल अवलिया के नाम से तहरीक बनी है। बुनियादी मकसद मुद्दा का जो हमारे असलाफ सूफिया किराम, सूफ़ी संत जो होते हैं हमारे, स्पेशल जो पर्सनालिटी होती है बुज़ुर्गान दीन, उन्होंने जो तसव्वुफ़ के रंग में दीन की, आवाम की, मिल्लत की जो खिदमत उन्होंने अंजाम दी है, तो उसी नाम से हमने भी ये नाम रखा। सौत के माने आवाज़ है, अल-औलिया के माने अल्लाह के दोस्तों की आवाज़। तो इसी नाम पर हमने तहरीक 2005 में बनाई। तो अब चूँकि तनहा कोई इंसान कुछ कर नहीं पाएगा और कर भी नहीं सकेगा, लिहाजा हर एक बड़ा काम करने के लिए बड़े बड़े लोगों की भी और यूनिटी की भी ज़रूरत है। हर एक तबके से वाबस्ता लोग जो हैं अपना अपना मिजाज रखते हैं, अपना अपना तजुर्बा रखते हैं। तो लिहाजा उन सब से मिल कर के हमने एक तहरीक उनके मशवरों से बनाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस वक्त कम अज़ कम जम्मू कश्मीर सतह पर बड़ी तादाद में लोग इसके साथ जुड़े हैं। उलमा हैं, बड़े बड़े दानिशवरान कौम मिल्लत है, वकला है, डॉक्टर है, तलबा है। तो हमारी कोशिश यही है, दीन और अवाम दोनों हमारा मकसद है, दोनों की खिदमत सही तरीके से हो जाए, ये हमारा बुनियादी मुद्दा मकसद है। मौलाना साहब, अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीरी मुआशरे में मजहबी रहनुमाओं का कितना अहम रोल है? देखिए, मजहबी रहनुमा अगर तारीख़ पढ़ेंगे तो हर वक्त मजहबी रहनुमाओं का रोल रहा है। चाहे दीनी मामलात हो, सियासी मामलात हो, समाजी मामलात हो, अगर तारीख़ का मुताला करें, हर ज़माने में मजहबी जो क़यादत होती है, मजहबी कायदीन जो अगर हम इस्लाम के तनाज़ुर में देखेंगे तो हर वक्त मजहबी ज़िम्मेदारों ने ही कौम को संभाला है। और जहाँ तक कश्मीर का हम देखें तो यहाँ चूँकि मजहबी जो इस्लामी तारीख़ का मुताला करें तो लगभग 750 साल से ही है, ज़्यादा पहले नहीं, 800 करीब 800। तो तब से लेके आज तक जितने यहाँ दौर गुजरे हैं, हालात जितने गुजरे हैं, तो हर वक्त उलमा किराम ने अपना रोल अच्छे तरीके से निभाया है। और ज़रूरत भी इस वक्त इसकी है कि मजहबी रहनुमाओं को ही अगर ज़्यादा आगे रखा जाए, क्योंकि सबसे पहले हर मामले में अल्लाह का खौफ बहुत ज़रूरी हो। मौलाना साहब, जैसे कि आपने फरमाया कि मजहबी रहनुमाओं का हर फील्ड में रोल रहा है, कोविड-19 वबा में आपने किस तरह आवाम की खिदमत की? देखिए, चूँकि कोविड-19 ये एक आलमी वबा और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़ोर हुकूमती सतह पे, कानूनी सतह पे इसी पे रहा कि सोशल डिस्टेंस रख लीजिए, ये इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन उसके बावजूद भी जितना मुमकिन हमसे हो सका, जैसे आवाम की, गरीबों की मदद माली तौर पर करना जो हमारा तहरीकी एक ज़िम्मेदारी है, इसके लिए हमने एक ट्रस्ट भी बनाया हुआ है। हमारी तहसीली सतह पर, ज़िली सतह पर हमारे सदूर हज़रात जिन्हें सदर प्रेसिडेंट या निगरान हम कहते हैं, उनको हमने पहले दिन से ही हिदायत रखे हुए कि आपके पास कोई भी साइल गरीब मिस्कीन आ जाए या खुद भी आप अपने अपने तहसीलों में, अपने अपने डिस्ट्रिक्टों में मालूम कर लीजिए जो भी हकदार हैं। तो हमने पहले ही दिन से सोशल मीडिया पर खुद में सामने आकर के या तहरीरी तौर पर या तकरीरी तौर पर हिदायत जारी की है बार बार। तो वो अभी भी नेट पे मौजूद होगा। बार बार हमने लोगों को गुजारिश की कि आप इन नंबरात से रब्ता कर सकते हैं, किसी भी किस्म की
किसी भी किस्म की कोई ज़रूरत हो, माली ज़रूरत हो, हालांकि दवा हमने तकसीम किए, मास्क हमने हॉस्पिटलों में तकसीम कर लिए हैं, पैसे हमने तकसीम कर लिए जितना हमसे हो सका है, और गरीब लोग जो खुद जिन्होंने राब्ते किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज तक, अगस्त जो आज 24 तारीख 2020 आज तक लगातार मैं नाचीज़ खुद और हमारे जितने उलमा ज़िली सतह तहसीली सतह पर ज़िम्मेदारा वर्कर कारकुना लोग हैं, तो हमने सोशल मीडिया के ज़रिए से या इसके अलावा घर घर जाकर के जितना मुमकिन हो सका सोशल डिस्टेंस का लिहाज करते हुए भी हॉस्पिटलों में गए, घरों में गए, तो माली तौर पर जितना भी हो सका हमसे हमने मदद किया। मौलाना साहब, आपका जो खिताब होता है उसमें जमे गफ़ीर होता है जी अल्हम्दुलिल्लाह। और कोविड-19 की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि लोग जमा नहीं हो पाते थे बिल्कुल, और महदूद इंटरनेट सर्विस की वजह से आपको कितनी मुश्किलात पेश आई, क्योंकि लोग जमा नहीं हो सकते थे, तो एक ही मीडिया था कि आप सोशल नेटवर्क या किसी और मीडिया के जरिए, लेकिन 2G था, महदूद नेटवर्किंग थी, तो आपने किस तरह ये मुश्किलात? देखिए लोगों के तालमेल तो बिलमुशाफा फेस टू फेस हो नहीं पाए, लेकिन जितना इंटरनेट यहाँ चल रहा है, जैसा आपको पता है 2G मेरे ख्याल से 1 साल से चल रहा है यहाँ पर, जहाँ हर शोबे में इसकी प्रॉब्लम है, हर शोबे में, इसमें सिर्फ तबलीगी तकरीरी शोबे में नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे जो वाबस्तगन लोग हैं आजकल जो नेट पे अवेलेबल हमारे बयानात हैं, लोग हर मोबाइल में हमारे बयानात स्पीच मौजूद रहते हैं, लोग उनको भी देखते रहते थे, लेकिन जुमा के मौक़ों पर हम नहीं जा पाए या इज्तिमात होते थे उसमें नहीं जा पाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने घर बैठे ही 2G ही का जितना मुमकिन हो सका हमने इस्तेमाल कर लिया। तो कम से कम कुछ बीच में वीडियो के ज़रिए से या तहरीर के ज़रिए से कुछ न कुछ लोगों को हिदायत, दीन पर अमल, या जो मैं आप अभी सवाल फरमा रहे थे लोगों के, ज़्यादातर हमने इसी पे जोर दिया कि आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वबा की सूरत में कि लोगों की जितनी मदद हो सके उतना आप मदद करते रहिए। तो इन दोनों चीज़ों को हमने कुछ हद तक जितना हो सका 2G के होते हुए तो हम जुड़े रहे लोगों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बयानात भी होते रहे, मजहबी बयानात जो होते हैं या कोविड के हवाले से लोगों के माली तौर पर जो मदद हो वगैरह, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों से कुछ हद तक जुड़े रहे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी तो सब मुकामी मीडिया जिसमें हमारे अखबारात आते हैं, हमारा लोकल रेडियो स्टेशन आता है या हमारी लोकल कुछ न्यूज़ बुलेटिन आती है, उनका कैसा रोल रहा है आपकी बातों को लोगों तक पहुँचाने में? वैसे मैं समझो इस हवाले से उनसे एक नाराज़गी का ही इज़हार कर सकता हूँ, क्योंकि हमारी जो तहरीक है ये एक समझो एक नंबर 1 गैर सियासी तहरीक है, नंबर 2 ये कोई कमर्शियल सिस्टम नहीं है, तिजारती मामला इसमें है ही नहीं। इसमें जो लोगों से हम पैसा लेते हैं, ज़कात, सदक़ात, उशुर, अतियात लोग देते हैं, और इसमें कई शोबे चलते हैं, जैसे मैंने भी बोला ट्रस्ट लोगों की मावनत हादसात की सूरत में या ये वबा की सूरत में या जब भी ज़रूरत पड़ती है, इसके अलावा इज्तिमात करना, लोगों को दावत देना, इसके अलावा और भी जो इसके अंडर बहुत सारे इदारा हमारा चलता है, उसमें 200-250 तलबा है, कोई फ़ीस नहीं है, बिल्कुल फ्री में तालीम पढ़ाई वगैरह, यानी मैं अर्ज़ ये करना ये तजारत नहीं है। लिहाजा इस तनाजुर में जितना मीडिया को हमें सपोर्ट करना चाहिए था उतना नहीं हो पाता उनसे, अगर कभी बुलाना भी पड़ते तो शायद हमें यहीं से उनको किराया शराया वगैरह देने के बाद ही कोई मीडिया वाले आते हैं और फिर हमारी बात आगे ले जाते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँ, हमारा चूँकि कमर्शियल नहीं, अगर वो भी हमारा सपोर्ट करे कुरान की रूह से वताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, एक दूसरे की मदद नेकियों में करो, तो शायद वो भी इस सवाब में। Overnight journalist from Jammu and Kashmir, Mr. Suhail Kazmi sir. Sir, welcome to our show, sir. Thank you very much, sir. Sir, which media organization are you associated with or work for? I am editing Daily Taskeen, that is an Urdu newspaper from Jammu itself, and it covers the Pir Panchal and the Chenab Valley. One of the oldest Urdu daily newspaper from Jammu, and with that I have a publishing house also. Nearly more than 22 newspapers of other organizations are being printed here. I am a stringer to Doordarshan since 90. I am contributing to nearly 30 years. I have been contributing to Doordarshan, radio, DD National, many electronic channels, but the Taskeen is doing well. सर, जो लोकल मीडिया हाउसेस या आपके मीडिया हाउस के बारे में बात करें तो आपका जो मीडिया हाउस है वो किस एज ग्रुप को टारगेट करके न्यूज़ बना?
دیکھیے جو نیوز پیپر ہمارا ہے یہ کسی ایج گروپ کو پرٹیکولر ایج گروپ کو ٹچ نہیں کرتا ہے. دیر آر 2 pages: نیشنل, اسٹیٹ, اسپورٹس, موویز, انٹرٹینمنٹ جس کو آپ بولتے ہیں, انوائرمنٹل ایشوز, ایڈیٹوریل آرٹیکلس. مطلب کمپلیٹ کوشش کی جاتی ہے کہ ہم جتنا بھی سیکشنز ہیں ان کو کور کر سکیں, اور وہ کوشش جو ہے کامیاب ہوتی ہے ڈیلی کی ڈیلی. سر اردو کا جو سرکولیشن یہاں پہ ہے تقریباً 26-27 ہزار نیوز پیپر کاپیز پر ڈے نکلتی ہیں, اور لکیلی بیچ میں سدبھاونا کے تحت, کیونکہ پہلے تو یہ اسٹیٹ اردو لینگویج کی اسٹیٹ تھی, اور ابھی بھی فار فلنگ علاقے جو آپ دیکھتے ہیں پہاڑوں پہ, رجوری, پونچھ, ڈوڈا, بھدرواہ, کشتواڑ, یہاں اردو ہی پڑھی جاتی ہے. اور اس کا ریزن ہے کہ ہند سماچار جو فرائیڈے کا ایشو ہوتا ہے وہ 10-15-20 ہزار ہند سماچار یہاں پہلے ایڈوانس بک کرتے ہیں, چاہے اس میں چٹپٹی چیزیں ہوتی ہیں. تو اردو کی لیڈرشپ جو ہے سر وہ ابھی ہے اور رہے گی, کیونکہ اردو سے لوگ جو جڑے ہیں, جو محبت کرتے ہیں, وہ دل سے کرتے ہیں. اور بدقسمتی سے زبانوں کو مذہبوں کے کی رنگت دے دی ہے. ادروائز جو زبان ہے اردو, اس کا ایک اپنا دائرہ ہے, اس کا ایک اپنا وجود ہے, اور اس کے ایک اپنے سینٹیمنٹس ہیں جو اس کو مرنے نہیں دیں گے. کیونکہ پچھلے 1 سال سے انٹرنیٹ کی وین ہے, انٹرنیٹ سلو ہے یا کبھی نہیں تھا, تو پینڈیمک کی وجہ سے جو ہمیں انفارمیشن لوگوں کو دینی تھی تھرو میڈیا, کتنا مشکل ہوا آپ کو؟ First of all, it was total failure of the government administration. There was no one here in the state of Jammu and Kashmir. I will talk whole of the Jammu and Kashmir. No one, no even deputy commissioner, no authorities whom you want to communicate, never picked up the phones. And it was, it was very unfortunate on behalf of the state administration that due to COVID-19 and lockdown situations and other situations, we were left nowhere, and it was only Allah and our own might that we worked day and night, and still we are alive and we are working. But there was no help from any government agencies to any print electronic media person, not even a small type of pass, curfew pass, or this type of help was not given by the information department of the administration. دیکھیے آج کل جو پرنٹ الیکٹرانک میڈیا ہے, یا کوئی بچے سے لے کے بزرگ تک جو ہے وہ نیٹ سے جڑا ہوا ہے, چاہے وہ ہیلتھ کیئر ہو, چاہے ایجوکیشن ہو, چاہے کلاسز ہوں, چاہے آن لائن ٹیوشنز ہوں. تو ساری دنیا جو ہے آج انٹرنیٹ سے جڑی ہے. اب بدقسمتی سے ہماری ریاست تھی تو آرٹیکل 370 سے اسپیشل سٹیٹس کی اسٹیٹ, لیکن میں سمجھتا ہوں جتنے زیادہ ایکسپیریمنٹ جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اور جموں کشمیر کی دھرتی کے ساتھ ہوئے, اتنے شاید ہی پوری دنیا میں کسی بھی خطے کے ساتھ ہوئے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی جو ہیومن رائٹ وائلیشن میں بولوں گا آج کے دور میں, لوگ کھانا چھوڑ دیتے ہیں لیکن انٹرنیٹ نہیں چھوڑتے, تو بچے جو ہیں پڑھنا نہیں چھوڑتے, یا گوگل سے کچھ انفارمیشن لیتے ہیں. تو وہ 1 سال ہمارا جو ہے بڑی مشکل سے گزرا, کبھی 2G, کبھی 1G, کبھی 3G, کبھی 4G, اور کبھی کبھی بالکل بند. تو وہ مصیبت رہی, لیکن پھر بھی اللہ نے ہمیں وہ سال سے نجات دلائی. آج تھوڑا سا نارمل جموں کشمیر ہونے جا رہا ہے, اور امید ہے کہ آنے والے دنوں میں اور بہتر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سادھن بنیں گے اور اچھے ہوں گے. سر چونکہ اس پینڈیمک میں کافی سیاسی اور سماجی تنظیموں نے کافی کام کیے, کیا آپ نے کسی تنظیم کے ساتھ اس میں کام کیا اس پینڈیمک میں؟ سر اس پورے کووڈ-19 کے ماحول میں پچھلے 4-5 مہینوں میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً 30-40 جگہ ایونٹس پہ مجھے موقع ملا ڈفرینٹ NGOs کے ساتھ. اس کے علاوہ کچھ اور NGOs تھی جو ہم سلمز تک گئے, جو سلم میں ہیں, میرے ہاتھوں سے ہی ڈسٹریبیوٹ ہوئی, اور اس کی فوٹوگراف میں آپ کو دکھا سکتا ہوں, کلپنگ بھی دکھا سکتا ہوں. کوشش یہی ہے کہ سب کا روٹی روزی چلتی رہے. سر ریسنٹلی جو آنریبل لیفٹیننٹ گورنر کے ایڈوائزر ہیں مسٹر بشیر خان صاحب, تو انہوں نے بولا کہ یہ جو آپ کی کشمیر JNK کی سوسائٹی ہے, ریلیجس لیڈرز کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے. کیا آپ اس چیز کو مانتے ہیں؟ اگر ہاں تو آپ نے بتائیے کیا ریلیجس لیڈرز کا جو امپیکٹ ہے وہ یہاں کی سوسائٹی پہ ہے, ڈیولپمنٹل ورکس پہ ہے, ریلیجس ورکس پہ ہے؟ بالکل ٹھیک کہا بشیر خان صاحب نے. پہلے تو بشیر خان صاحب جموں کشمیر کے KS کیڈر کے آفیسر ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے کشمیر میں میجورٹی مسلم ہے, تو میجورٹی مسلم ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی
इस्लामिक कदरों से जुड़े हुए हैं, मस्जिदों से जुड़े हुए हैं, इबादत से जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने ठीक कहा, क्योंकि हमारे बच्चे से बुजुर्ग तक हमारा कश्मीर में एक चलन है कि हम इबादत गुजार लोग हैं, परहेज गुजार लोग हैं, और नेचुरली जो हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं उनका असर जो है वो रहता है समाज पे, और जो भी लोग अपनी इबादतों से जुड़े हैं, जो भी वहाँ वो फरमाते हैं, तो उस पर उनका असर जो है बड़ा गहरा होता है, क्योंकि रिलीजियस सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और उनकी कोई कही हुई चीज़ जो है, मैं समझता हूँ एक फरमान बन जाता है, एक सरमन बन जाता है सोसाइटी को जोड़ने का, पेंडेमिक इस कोविड-19 में कैसे रहना है, कितनी सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। लोकल मीडिया ही हेल्प कर सकता है। और मैं बताऊं आपको कि जो कम्युनिकेशन आपको अपने लोग बता सकते हैं वो नेशनल मीडिया कवर नहीं करेगा। तो वो एक उनका फोकस रहता था कि रीजनल मीडिया को ज़्यादा एम्पावर किया जाए, ज़्यादा फैलाव किया जाए, ताकि उनकी जो कही हुई चीज़ें होंगी वो समाज पे, उनकी जो राइटिंग्स हैं, उनके जो आर्टिकल्स हैं, वो ज़्यादा असर डालेंगी। और रिलीजियस लीडर्स तो बिल्कुल इन्वॉल्व रहते हैं अपनी राइटिंग्स के साथ या अपनी चीज़ों के साथ। एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन किस तरह असिस्ट कर सकती है एक रिलीजियस लीडर को? देखिए, मीडिया जो है एक रिफ्लेक्शन है सोसाइटी की, एक आईना है सोसाइटी का, सब सेक्टर्स का। तो मीडिया अगर ट्रांसपेरेंट है, मीडिया अगर इन्वेस्टिगेटिव है, तो रिलीजियस लीडर्स ज़रूर उसको वॉच करते हैं, उसके साथ जुड़े रहते हैं। अपने कोई चीज़ जिसको वो प्रचार करवाना चाहते हैं मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू या किसी भी मीडिया के थ्रू, तो उनके साथ उनकी लाइजनिंग रहती है हमेशा। अदरवाइज क्या होता है, मीडिया को छोड़ के वो रिलीजियस लीडर भी नहीं चल पाते। जैसे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड्स होते हैं, इस टाइप की कमेटीज़ होती हैं, इस टाइप की कमेटीज़ रहनी चाहिए। पुलिस पब्लिक मीट्स होती हैं, इस टाइप की एक इंटरेक्शंस रहनी चाहिए समाज के सभी वर्गों के साथ, कि कभी चाय के कप पे बैठें और तबादला ख्याल करें, एक दूसरे के ख्यालों को सुनाएं, और एक हेल्दियर जो उसका रोस्टर है वो उभर के बाहर आए, ताकि जब वो समाज में उसका फैलाव हो तो समाज जो है और अच्छी तरह ग्रो करे, और एक अच्छा साजगार माहौल जो है समाज में रहे। तो रिलीजियस लीडर्स का काम ज़्यादा हो जाता है ड्यू टू रिलीजियस सेंटिमेंट्स। Sir, do local media houses have social media outreach? Definitely, certain now in the age of this social media, what we are seeing that we became compulsory to launch our portals, and by launching our portals, our reach also increased. One interview is being seen more than 2 lakh people, 3 lakh people. So our reach also exceeded with these portals and social media, and accountability above all वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि आपको जब 3 लाख लोग देख रहे हैं, 2 लाख देख रहे हैं, लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, तो आप बड़े, जो भी आपके बच्चे काम करते हैं, रिपोर्टर्स हैं, जो भी हैं, वो बड़े रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए, थोड़े पढ़े लिखे होने चाहिए, समझदार होने चाहिए, क्या अच्छा है और क्या बुरा है उसकी तहजीब होनी चाहिए। और उसका जो आउटरीच प्रोग्राम है वो अखबारों से ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि इंस्टेंट आपके हाथ में मोबाइल है और आप इंस्टेंट देखते हैं कि कौन सा रिपोर्टर कहाँ क्या स्टोरी कर। साहब, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया। मोदी साहब, आप अपना और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की मुख्तसर तारुफ कराएं। देखिए, मैं सैयद अली बादशाह नकवी, इमाम जुम्मा वल जमात, शिया जामा मस्जिद सूफी शाह पीर मिठा जम्मू। हमारी जो तंजीम है अंजुमन इमामिया रजिस्टर्ड जम्मू, ये तकरीबन हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे से पहले जो है ये खिदमत अंजाम दे रही है, और तकरीबन 70-72 साल से जो है वो काम कर रही है, मजहबी लेवल पर भी और मज़हब के अलावा दूसरी तमाम चीज़ों पर, जैसे कि भाईचारा, भारतीय भाईचारा, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और इत्तेहाद बैनुल मोमिनीन के उन्वान से भी। लिहाजा इन्होंने बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से लोगों को समझने में और लोगों से करीब आने में और बहुत सी खिदमात करने में, जैसा कि गरीब तबका है, गरीब लड़कियां हैं, उनकी शादियां कराना, बच्चे जो पढ़ नहीं पाते हैं उनके लिए मसलन के वज़ाइफ और वजीफ़े का इंतज़ाम एहतमाम करना, उसके अलावा मजहबी एतबार से मजालिस अज़ा का एहतमाम करना, महफिल का हर विलादत और शहादत पर प्रोग्राम मुनाकिद किया जाता है। उसके अलावा जो है वो बहुत सी खिदमात हैं मजहबी एतबार से भी और गैर मजहबी एतबार से भी। मौलवी साहब, अगर हम जम्मू कश्मीर के समाज की बात करें तो इस समाज में एक मजहबी रहनुमा की कितनी इम्पोर्टेंस है? देखिए, जम्मू कश्मीर के जो समाज और माशरे में एक रहबर की, एक कायद की, एक रहनुमा की बेपनाह ज़रूरत है, ताकि वो अफराद के जो मिसाल के तौर पर इधर उधर चले जाएं
یا غلط راہ پہ چلے جائیں یا کسی اور مثلاً کہ راہ سے جو ہے وہ ٹریک سے ہٹ جائیں، ان کو بتانے کے لیے کہ مذہب کیا ہے اور مذہب کے ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ساری چیزیں جو سماج میں ہمیں زندگی بسر کرنا ہے، تو اللہ کے نبی نے اور باقی ان کے نمائندوں نے، انبیاء نے کیسے زندگی گزاری ہے، اس کے لیے بہتر سے بہتر زندگی گزارنے کے لیے ہمارے لیے سب سے بہترین جو سیرت ہے وہ سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لہٰذا اگر ہم پیغمبر اسلام کو اپنا قائد اور رہبر مانتے ہیں، رہنما مانتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ آج اللہ کے نبی نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے جو قائدین کی نشاندہی کی ہے اور ان کے راستے پر اور ان کی راہ کو جو نشاندہی کرنے والے حضرات ہیں، ان کے بتائے ہوئے راستے پر ہم کو چلنے کی، ان کی باتوں پر عمل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ ہے اہل ذکر، یعنی اہل ذکر سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر کسی شے کے بارے میں تم نہیں جانتے تو تم اہل ذکر سے معلوم کرو۔ وہ اہل ذکر جو ہے لہٰذا علماء کرام ہیں، قائدین ہیں، لہٰذا اگر کسی شے کے بارے میں ہم نا آشنا ہے، نا واقف ہے، اجنبی ہیں، تو ہم کو جو ہے ضرورت ہے کہ ہم اپنے قائدین سے، اپنے علماء سے، اپنے رہبران سے جو ہے وہ رجوع کریں، اور رجوع کرنے کے بعد میں صحیح اور غلط کا جو ہے وہ نشان ہمیں وہ بتائیں گے، صحیح اور غلط کی پہچان ہمیں وہ کرائیں گے۔ لہٰذا ایک قائد کی اور ایک عالم کی اور ایک رہنما کی جو ہے وہ یہاں جموں کشمیر کے معاشرے میں جو ہے نا بے پناہ ضرورت ہے، اور اس کی ضرورت کو ابھی محسوس بھی کیا جا رہا ہے۔ مولوی صاحب، جیسے کہ پوری دنیا میں ایک مہاماری پھیلی ہوئی تھی اور SOPs جاری کی گئی تھی گورنمنٹ کی طرف سے کہ کس طرح آپ کو رہنا ہے، کس طرح آپ کو کھانا ہے، باہر نکلنا ہے، تو آپ نے کس طرح اپنی کمیونٹی کو آگاہ کیا ان دنوں میں اس مہاماری میں؟ دیکھیں، جو موجودہ دور میں تقریباً 1 سال ہونے آیا ہے، یہ سلسلہ چل رہا ہے مارچ سے پہلا، اس میں جو سرکار کی طرف سے گائیڈ لائنس جاری کیے گئے، SOPs کی ہے، ماسک ہے، سینیٹائزیشن ہے وغیرہ، تو سب سے پہلی چیز تو انسانی زندگی کی اہمیت کو بتایا ہم لوگوں نے کہ انسانی زندگی کے لیے جو ہے وہ کتنا اہم ہے، مثلاً کہ زندگی کتنی ضروری ہے اور زندہ رہنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ انسانی زندگی کے اوپر روشنی ڈالی اور اس کی اہمیت کو بتایا کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر گھر میں ایک کمانے والا ہے اور مانیے گا کہ اس کے بچے، بیوی، والدین مثلاً کہ کوئی اور دوسرا سہارا نہیں ہے، خدا نہ خواستہ اگر کسی ایک کو اس کو ہی ذمہ دار کوئی ہو جاتا ہے تو پھر ان لوگوں کے لیے جو آگے کی زندگی ہے وہ بہت دشوار کن ہو جائے گی۔ لہٰذا اس کی زندگی کتنی اہم ہے، پہلے تو اس کے اوپر ہم نے زور ڈالا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو چیزیں احتیاطی تدابیر ہو سکتی تھی کہ ماسک پہنے، بار بار ہاتھوں کو دھونا وغیرہ، صاف صفائی کرنا، اپنی بھی خود کی صفائی، جیسا کہ اسلام نے بتایا کہ جمعہ ٹو جمعہ جو ہے انسان اپنے جسم کی صفائی رکھے۔ اور ان ایام میں جو ایام اعضاء چل رہے ہیں تو ان میں ہم نے یہ کیا کہ سینیٹائزر کا اہتمام کیا باقاعدہ طور پر، امام بارگاہوں کے گیٹ پر، مسجد کے دروازے پر، اور دوائیاں چھڑکنا، مسجد کو مثلاً کہ صاف کرنا، دھونا، اس کے علاوہ مصافحہ زیادہ تر نہ کرنا، گلے نہ ملنا، جیسا کہ مہمان لوگ آتے ہیں آپس میں گلے بغل گیر ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ زیادہ تر سب سے زیادہ جو زور دیا ہے وہ جو سرکاری گائیڈ لائنس تھی ان کے اوپر اور صاف صفائی کے اوپر توجہ دلائی ہے لوگوں کو۔ کیونکہ جموں کشمیر میں کئی مہینوں سے لو انٹرنیٹ سپیڈ ہے، تو آپ کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس لو انٹرنیٹ میں؟ دیکھیے، مشکلات تو بہرحال بہت زیادہ ہوئی اپنی بات کو پہنچانے میں، پیغام انسانیت کو پہنچانے میں، اور جمعہ کا جو پیغام ہوتا تھا، جمعہ ٹو جمعہ مومنین آتے تھے، کم سے کم یہ ہوتا تھا کہ جمعے میں جانے سے کم اپنے مذہب کے بارے میں 4 باتیں ملتی ہیں، اور یہ ہوتا تھا کہ جمعہ ہمیں نصیب ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اس میں واعظ اور نصیحتیں بھی ہوتی تھی۔ کچھ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہیں، کچھ جو ہے وہ پریشانی کے پیش نظر اور مہاماری کے پیش نظر جو ہے وہ نہیں آ پاتے ہیں۔ تو اس میں یہ کیا ہے کہ یہاں انجمن امامیہ کے ذریعے سے انٹرنیٹ کا جو ہے انہوں نے انتظام کیا، اور باقاعدہ طور پر آن لائن جو ہے مجالس اعضاء، زیادہ تر مجالس اعضاء جو ہے وہ آن لائن منعقد کی گئی۔ حضرت، آپ ہمیں بتائیے کہ لوکل میڈیا نے کس طرح آپ کی مدد کی اس لاک ڈاؤن میں؟
देखिए, लोकल मीडिया ने हमारा बहुत साथ दिया और हम उनका जो है वो शुक्रगुजार हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम प्रोग्रामों को वक्फन फ़वक्तन जो है वो मसलन कि वो इंटरव्यू के लिए आते रहते थे और मजालिस अज़ा की टाइमिंग, मजालिस अज़ा के पैगामात और वो किसी न किसी तरीके से जो है वो अंजुमन इमामिया जम्मू के अराकीन से भी रब्ता करके उनसे इंटरव्यूज़ वगैरह के ज़रिए से जो है अपने चैनल पर दिखाते रहते थे। डेली तस्कीन ने भी और दिगर तमाम चैनलों ने जो है वो हमारे तमाम चीज़ों को, मुहर्रम के तमाम बातों को, प्रोग्रामों को, आशुरा का प्रोग्राम ख़ास तौर से, इन तमाम को जो है उन्होंने अपने अपने चैनलों से दिखाया। यहाँ तक कि दूरदर्शन ने भी अपने चैनल पर जो है ये जारी किया। हम लोकल चैनलों का और मीडिया का जो है वो बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारे आवाज़ को उन्होंने अपनी आवाज़ बनाकर जो है वो लोगों तक पहुँचाया। हमारे साथ बात करने के लिए है जनाब सतीश वर्मा जी, जो स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट है राष्ट्रीय सहारा के। इनकी 35 साल की एक्सपीरियंस है जर्नलिज्म में। इसके अलावा इन्होंने 2 बुक्स भी लिखी है अबाउट देयर, इनकी जो ट्रैवलिंग रही है पाकिस्तान में और कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट के मुतालिक इनकी 2 बुक्स मंजर आम पर आई हैं। सर, आपका शुक्रिया। जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप काम कर रहे हैं, हमें उसकी आप आउटरीच बताइए कि कितनी आउटरीच है उसकी और क्या वो किसी खास एज ग्रुप को टारगेट करके न्यूज़ बनाते हैं? देखिए, हमारे अखबार के कई एडिशन हैं। मसल उत्तर प्रदेश में भाई कई एडिशन चलते हैं। बॉम्बे का है, नेशनल है, दिल्ली का है, एनसीआर का है, बिहार का है, पटना का है, बहुत एडिशंस हैं और इसकी रीच बड़ी वाइड है। लाखों लोग हमारे मीडिया ग्रुप से जुड़ी जो न्यूज़ हैं, टेलीविज़न जैसे हमारा सहारा समय टेलीविज़न है, उसके कई रीजनल चैनल है, नेशनल चैनल है। तो रीच की बात कहें, हमारा चैनल तो दुनिया के कई मुल्कों में दिखता है और अखबार भी हमारी मतलब ये लाखों हमारे रीडर्स हैं जो पूरे मुल्क के अंदर अखबारों की खबरों को पढ़ते हैं। सर, जैसा कि आपको भी पता है कि मार्च महीने में लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन के साथ साथ जो हमारे जम्मू कश्मीर यूटी में एक और प्रॉब्लम हुई कि इंटरनेट की स्पीड काफ़ी कम हो गई। तो क्या लगता है, आपको लगता है कि इस वजह से आपका जो काम था, आपकी जो मैसेज थी, वो लोगों तक पहुंचने में काफ़ी मुश्किलात सामने आई? देखिए, 4G का तो मेरा मानना है कि हर सेक्शन से प्रभावित हुआ है। वो स्टूडेंट्स हों या नौकरी पेशा हो, जिसको ITR भरनी थी, उसको भी, हर आदमी को 4G के से बड़ा मुतासिर हुआ है। और मैं समझता हूँ कि 4G हालांकि सिक्योरिटी वजह से इन्होंने बंद किया है, लेकिन दिक्कत तो लोगों को हुई है, इसको तो हम खारिज नहीं कर सकते। जहाँ तक हमारी प्रोफेशन की बात है, जर्नलिस्टों को भी शुरू में बड़ी प्रॉब्लम्स आई, जब बाद में ब्रॉडबैंड वगैरह ये सब चीज़ें ठीक हो गया। और लेकिन फिर भी अभी भी जम्मू में ऑफिशियल तौर पे ये 2G दे रहे हैं, जबकि दोनों नेशनल कैपिटल में अभी भी 2G है। हैरत की बात ये, गांधरबल में और उधमपुर में इन्होंने खोला, का एक्सटेंड भी कल किया इन लोगों ने। लेकिन ज़रूर जो थी कि दोनों स्टेट की दोनों कैपिटल को में इसको खोला जाना चाहिए था, ताकि एक तो देखिए दोनों इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं, ये हमारा जो स्टेट है ये टूरिज़्म पे, इसकी रीढ़ की हड्डी है टूरिज़्म। तो कारोबार जब तक नहीं चलेगा तो कैसे बात आगे बढ़ेगी। क्या आपने किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम किया है इस महामारी में? जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी या रिलीजियस थी, हमने चूँकि हमारा उसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेशन पॉसिबल नहीं था, चूँकि हम जर्नलिस्ट हैं, हम इंडिपेंडेंट अपना काम करना चाहते हैं। ये ज़रूर है कि उन प्रोग्राम्स को हमने अपने अखबारों में खबरों के ज़रिए ज़रूर एक महत्व दिया, ताकि लोग इनकरेज हों और आगे आके इस महामारी में जो अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं वो आके दें। सतीश सर, रिसेंटली हमारे जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनके एडवाइज़र बशीर खान साहब ने एक बात कही कि हमारी सोसाइटी में रिलीजियस लीडर्स का एक अहम रोल है। क्या आप इसको मानते हैं कि रिलीजियस लीडर्स का रोल, चाहे यहाँ की डेवलपमेंट है, चाहे हेल्थ केयर है, चाहे सोशल इश्यूज़ है, क्या उनका रोल बनता है हमारी सोसाइटी में?
देखिए, हम अपनी स्टेट की बात करें, ख़ास तौर से पूरे हिंदुस्तान के नक्शे पे जम्मू कश्मीर की बात करें, तो हम समझते हैं जो यहाँ के हालात हैं, जो यहाँ की टोपोग्राफी है, हालात हैं, उसमें रिलीजियस लीडर्स की अहम भूमिका बनती दिखाई देती है। क्योंकि बहुत सी चीज़ें इस दौरान अफवाहें भी उड़ती हैं कि इलाज में ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, लेकिन रिलीजियस लीडर जो होते हैं वो मोटिवेशन में एक अहम रोल अदा कर सकते हैं इस बीमारी में ख़ास तौर से। और हमने देखा भी है, वैली में भी कुछ रिलीजियस लीडर सामने आए, यहाँ भी आए हैं, क्योंकि ये महामारी को सबने मिलकर पार करना है। ये ऐसी बीमारी नहीं है कि इंडिविजुअल लेवल पे ना पूरी सरकार के बस की है, ना पूरे सोसाइटी के बस में, इसमें सबको मिलकर इसके पार निकलना है, इस बीमारी से निजात पानी है। तो हम समझते हैं कि जो बशीर खान साहब ने बात कही वो एक अहमियत रखती है। और मैं समझता हूँ कि जब तक रिलीजियस लीडर वो किसी मजहब के हों, वो जब तक आगे नहीं आएंगे और ये मान कर नहीं चलेंगे, अपने एजेंडे के साथ नहीं, सिर्फ इसके साथ आएंगे कि इस महामारी से हमें किस तरह छूट मिले, किस तरह निजात मिले, तो उनका एक अहम रोल तो बनता ही है। सर, आपके हिसाब से लोकल मीडिया किस तरह असिस्ट कर सकता है रिलीजियस लीडर्स को कि एक बेटर कोऑर्डिनेशन बने रिलीजियस लीडर्स और मासेस की? देखिए, लोकल मीडिया का बड़ा अहम किरदार होता है, कोई भी प्रॉब्लम आए, लेकिन जो सतही तौर पर लोकल मीडिया को जानकारी इनपुट्स होते हैं वो मैं समझता हूँ वो सबसे बेहतर होते हैं। और उसी को आगे बढ़ाते हुए एडमिनिस्ट्रेशन को, रिलीजियस लीडर्स को मैं मानता हूँ कि एक अच्छे समन्वय, अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ लोकल मीडिया को भी उनको चाहिए प्रमोट करें। लोकल मीडिया को जब तक आप इनकरेज नहीं करेंगे, बंदिशें लगेंगी पुलिस की, सिक्योरिटी की, तो कौन लोकल मीडिया रिस्क लेगा किसी रिलीजियस लीडर के पास जाने? ये भी तमाम चीज़ें हमें बड़ी माइल्यूटली देखना पड़ेगा कि भाई लोकल मीडिया को किस लेवल पे किस तरह से हम प्रमोट करें ताकि इस बीमारी से निजात पाने के लिए एक बेहतर कोऑर्डिनेशन हो, सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन और रिलीजियस लीडर और लोकल मीडिया। आप हमें बताइए सर कि जो यहाँ का लोकल मीडिया है, क्या उनकी सोशल मीडिया आउटरीच है? देखिए, सोशल मीडिया पर आप देखते हैं कि लोकल मीडिया की जो खबरें होती हैं, वो न्यूज़पेपर हो या रीजनल चैनल हो, उस सब ने सोशल मीडिया पे वो क्लिप डाले होते हैं लाजमी तौर पे। क्योंकि कई बार होता है, मान लीजिए ग्रेटर कश्मीर है, सपोज कश्मीर का अखबार जम्मू में अवेलेबल नहीं है, तो सोशल मीडिया में जो इम्पोर्टेंट खबर होती है वो उसमें डाल देते हैं। तो मेरा मानना है कि लोकल मीडिया का रोल हर सूरत में है, सोशल मीडिया में भी है। उसकी बहुत सी खबरें सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचती हैं और पहुंच भी रही हैं। Welcome sir. Kindly introduce yourself and your institution. Which religious community do you lead and in which location? My name is Ravindra Pandita. I am heading the Save Sharda Committee Kashmir registered this time. One of the registered organizations which strives for cross LOC heritage and religious tourism. You know, part of our Kashmir is across which is being administered and controlled and occupied with Pakistan. My committee head, and the head of that committee, which is in coordination, in tandem with government of India and government of Pakistan, and even government of POK, which they call AJK, and we try to work for, opening of these religious sites. Sir, how important do you believe the role of religious leaders in Kashmir society today? See, not only important, but I feel 100% role, because Kashmir is the land of rishis and Sufis. We have a culture, we have a civilization which is 5,000 years old. It's only, in the 7th century, recently Islam has come, another good religion into picture, but you go beyond that. Let's start with the Kashmir period, even during Mahabharata times and the, Ramayana times. And we have the traces. It's a it was predominantly shadowed and overshadowed by Buddhism, and later on then Sanatana and Hinduism takes place. But this place has a specialty in the whole globe, that we had a composite culture of Sufism and religious bonding.
And primarily what you see nowadays, this is not the correct picture. Religious leaders have a lot of role to play. It's very important that religious leaders step in and try to invoke that spirituality which is lost now in our part of Kashmir. And not only here, this has affected almost all Central Asian countries. And we should try to see that how it can be revived. You know, I am one of the members of the persecuted community which had to come out in 1990 because of this fundamentalism and a section of society over here who believed in Islamic jihad and all that. And they threw us out, and I know practically the majority of the community couldn't help at that time because it was a new thing to everyone, this type of terrorism. And earlier also we used to have protests here, we used to have agitations here right since 1947, the partition time. But this type of jihad which threw a community out, the aborigines, you know, who hold 5,000-year-old civilization. And it onus lies on the religious leaders that they should come out. We don't enter into politics, we don't enter into the working of the establishments, but we have a role at the civil society level, at the religious leaders level, that we imbibe those qualities again in the people, in the masses, what Kashmir used to be. So the role of all religious leaders are very important out here. During COVID-19 crisis, how have you served your community while keeping the public health guidelines in mind? We had a very tough time during Corona. You know, Corona was something very new to the country, to whole world. And obviously everybody tried that we should have some, you know, some medicine into it, and we couldn't do it till now. But again, the people were confined and people went into frustration, and it was something very new which created a lot of chaos. So we had a role to play that time, that we should try to keep people silent. Like there are a lot of things now, you know, because of social media. We involved people into yoga. That was the fundamental, that people got into yoga or into spiritual practices, because all our religious places were locked, all mosques were locked, all temples were locked, there were no congregations. So we tried our best that we should step in and try to tell the people that these tougher times will also go. We have seen a lot of tougher times. Then came onus on the social leaders, the religious leaders, and we tried our bit in our community. What I introduced, that we started a program of children. We are imbibing, we are developing about 200-300 children who we want that they should not forget Kashmiri language. So they started we have started their music programs, and they would come live on social media. We used to have 2 to 3 hours program called Gash Taruk, and that would entertain a lot of masses in the evening for at least 3 hours, that all bhajans or local or folklores or folk songs, right from Habba Khatun to Lal Ded and Nund Rishi and all that, these would all be recited and sung by children, and it was a good entertainment. So, as there is a limited internet connectivity in Jammu and Kashmir, did you find it difficult to communicate with other religious constituency in times of social distancing? Frankly speaking, not, sir, because I'll give an example. We have an ashram out here in Bagdam, and we used to do live programs every Saturday. This is geo facility. I think the person who is living here, who used to sing these bhajans and local songs from here, and he would do it live, and thousands of people would watch that. But there are certain aspects where, like administrative levels and business levels particularly, because of the low connectivity, yes, we have faced a lot of problems. We are not into a normal situation where we have a good connectivity. Otherwise also we should have even 5G should be preferred in Kashmir and 4G in the rest of the country. But we have a 2G system and we could have a limited exercise. But we have overcome that also. I think we should compliment our own people also, our own civil societies who have come out and who have helped in this. And despite this all crisis, the social media played a very good role. The social organizations played a very good role.
and that helped the religious organizations also. Because how could you otherwise control the masses from not going to mosques or for prayer? We haven't been so successful unless and until religious leaders have played their role, and they have played their role quite successfully. I am very happy about that. What role does local media play in terms of supporting your work? I think media has a very great role to play, because the project, if what I told you about myself, what we are trying to build is a consensus like on the lines of Kartarpur corridor, which has been opened recently, or on the lines of Nankana Sahib Yatra, which has been going. There is a treaty between India and Pakistan under which we have an LOC permit, which is basically handled and monitored by Ministry of External Affairs. Media should come forward and highlight our demands that we have asked and struggled for the last 2 decades, that there should be an amendment in the LOC permit rules. They should allow other than relatives also, like say, even if we talk of Muslim community only, like it is meant for J&K residents, those Muslims who do not have relatives and they want to visit certain dargahs and shrines out there in POK, we have 10 districts here. Why they will not be allowed? Why there is a restriction and a limitation to the relative part of it? So similarly, me, I am also a J&K resident, so my fundamental basic seat of learning, my Sharda Pith, which is Mecca to us, that's lying in POK. So we should be allowed, there should be an amendment. Now, who will bring this awareness? This awareness level will get, risen. It will ultimately come up only because of the media. And local media is a great role. You can't expect national media to come over and collect all these data and interview and you bring it to the national platform unless and until this local, our own media puts it out. So local media has a greater role. Even in COVID, local media has put a good effort that at least they could make aware the people what are the conditions of this COVID, what we have to do, do's and don'ts. Similarly, in our religious struggle also, in our Sharda struggle, Sharda mission, they should come and then it reaches the national level. Awareness is the key. What kind of mass media channels do you usually use for your work? First of all, I should appreciate and thank you for bringing all these issues and listening to me also, and carrying out my views also. And I feel people like you and media channels, it's not necessary those commercial channels which are running right now in India. We have about hundreds of channels. All those are useful at their own level, their own TRPs are there. But social media is also a good role. You have YouTube channels, you have other social media channels, and we should encourage those small channels and media houses, new houses, to come up with such issues which are not known to the साहब आप अपने बारे में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ हमें बताइए। देखिए, चट्टान के बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। चट्टान मारूफ नाम है इसका। ये काफ़ी पुराना अखबार है, कम अज़ कम 30-35 साल पुराना। बेसिकली चट्टान वाज ए वीकली न्यूज़ पेपर, और वीकली के तौर पर इसकी काफ़ी मास सर्कुलेशन थी और रीच भी थी, काफ़ी नाम भी था। वो ज़माना भी बेसिकली वाला हंगामा खेज ज़माना था, जब मतलब ये 85 में शुरू हुआ, फिर 90 से फिर मिलिटेंसी का शुरू हुआ। फिर चट्टान चलते चलते फिर 2011 में चट्टान डेली हो गया। 2011 में डेली के तौर पर भी चट्टान की चंद खसूसियात हैं। खसूसियात ये हैं कि चट्टान मतलब प्रोफेशनल बहुत संजीदा अखबार है। यहाँ मतलब यहाँ प्रेस का बड़ा कमर्शलाइज हो गया काफ़ी कुछ, इस पर मैं जाना नहीं चाहता क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन चट्टान वो बड़ा मतलब ऐसे इश्यूज़ जिन पर कोई मतलब जिसको कोई टच नहीं करता, चट्टान उन सारे हमारे राइटर्स भी हैं, वो वीकली के ज़माने से हैं जो हमारे साथ हैं रेगुलर बेसिस पर, वो लिखते आए हैं, वो लिख रहे हैं। कोई खास एज ग्रुप जिसको आप टारगेट करते हैं? हाँ, देखिए बेसिकली जो पुराना था उसमें ज़्यादातर नौजवान तबका चट्टान का था, नौजवान भी और मुझे लगता है कि रिटायर्ड लोग भी।
रिटायर्ड लोग भी जिनके उनके पास पढ़ने को काफ़ी टाइम होता है, तो उसका था, नौजवानों में भी था। आज भी मतलब मिसाल के तौर पर सपोर्ट्स का अलग होता है, शोबिज़ का अलग होता है, एक्टोरियल पेजेस अलग होते हैं। जिस तरह के मतलब एक्टोरियल पेजेस ज़्यादातर सीनियर जो लोग हैं उनके पसंद की चीज़ होती है, वो पढ़ते हैं। सपोर्ट्स और शोबिज़ वगैरह तो वो उनके नौजवान के लिए वो चलता है। डॉक्टर साहब, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से लॉकडाउन हुआ था, और लॉकडाउन के साथ साथ अगर हम कश्मीर की बात करें तो इंटरनेट भी डाउन था, अगर था तो 2G था, तो कितनी मुश्किलात आपको पेश आई अपनी ख़बर पहुंचाने में, अवेयरनेस पहुंचाने में? देखिए, जो न्यूज़पेपर जो ट्रेड है न्यूज़पेपर का, ये आज के ज़माने में चलता ही है इंटरनेट के ज़रिए। इंटरनेट के बगैर मतलब इसका सोच भी नहीं सकती अखबार का। मतलब आपको जो कुछ भी आपको मिलता है बाय मेल मिलता है या मैसेज मिलता है या मोबाइल फ़ोन आता है वगैरह, यही ज़रिया है। जो ये हुआ पिछले मतलब 5 अगस्त को, ये सारा ठप हो गया, उसकी वजह से मतलब पहले तो अखबार बंद ही हुई थी। उन मतलब अगर मैं मुझसे पूछा जाता तो मैं कहता बंद ही रखेंगे, लेकिन कैसे कुछ ऐसा हुआ, कुछ एक अखबार निकला, फिर 2 अखबार निकले, फिर सबको करना पड़ा। लेकिन किन हालात में वो हुआ, बड़ा एक था, वो इंतहाई अजियतनाक एक तजुर्बा था। मतलब मीडिया सेंटर में जाना, वहाँ बैठना, लाइन में रहना, और वहाँ जब आपकी बारी आएगी, कभी कभी हमारे लोग आते थे, कहा हमारी आज बारी नहीं आई, वो नहीं आई आज, फिर ये क्या करेंगे। मतलब ये बड़ा, और मतलब मिसाल के तौर पर इतना ही नहीं है, मतलब यहाँ मतलब लोकल न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, वो प्रोवाइड करते हैं बाय मेल, वो भी नहीं कर सकें। फिर क्या जाता था, पेन ड्राइव लेके कोई ऑपरेटर जाता था उनके दफ्तर पे, तो वहाँ से फिर पेन ड्राइव में लाता था, और शाम को फिर देखते थे लैपटॉप पे खोल के जी क्या है फिर अपलोड करने में अपलोड कर, ये मतलब 1000 तरह के मसाइल थे, 1000 तरह की। अच्छा, क्योंकि एक कम्युनिटी में काफ़ी स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो क्या आपने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, सोशल सर्वेंट्स हैं, उनके साथ काम किया, या आपने जो रिलीजियस लीडर्स हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है इस कम्युनिटी के, क्या उनके साथ काम किया इस पेंडेमिक में? मैं ये कह रहा था कि अखबार के साथ जो मुंसलिक लोग होते हैं, उनमें से हमारे साथ भी कई मुंसलिक असाब थे जो उनके साथ मिल के, मतलब जो आप कहते हैं जो काम कर रहे थे, उनके साथ काम कर रहे थे। लेकिन एज़ जो अखबार का मसला रहा, अखबार में जो कोविड की जो कवरेज होती रही इन मुसलसल, उसमें ये सबके साथ था, सबका कवर हो रहा था कि डॉक्टरों ने अगर कुछ कहना था, उनका अगर मसला था, उन्होंने कुछ कहा, या उनका कोई इशू था, ये भी हुआ। रिलीजियस लीडर्स का क्या था, बिजनेस कम्युनिटी का क्या था, या मतलब जो हैं या इकानमी का क्या हालत है, दूसरे सेक्टर्स की, ये सारे मामला कवर हुए होते हैं। स्टूडेंट्स का क्लास, हर चीज़। रिसेंटली जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर है बशीर खान साहब, तो उन्होंने कहा कि इस कम्युनिटी में रिलीजियस लीडर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। क्या आप ये मानते हैं? अगर आप मानते हैं तो एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के मालिक होने की तई आप किस तरह एक रिलीजियस लीडर की मदद कर सकते हैं अवेयरनेस फैलाने में? हमारी सोसाइटी में रिलीजियस लीडर्स का जाहिर है कि मतलब बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। उनके बगैर बहुत से मामलात हैं जो सिर्फ वही जो रिलीजियस लीडर्स की ही राय मैटर करती है। और ये भी कोरोना ये मसला भी एक ऐसा मसला था जिसमें उनके ताउन के बगैर या उनकी कोऑपरेशन के बगैर, इसमें मिसाल के तौर पर अगर लॉकडाउन भी करना था, अगर रिलीजियस लीडर इसमें कोऑपरेट न करें तो इसमें बहुत से मसाइल, बल्कि इब्तिदा में शुरू में कुछ मसाइल हुए भी फिर वो उन पर काबू पाया गया। ये मसला ज़रूरी है, उनका कोऑपरेशन इसमें बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक उनके रोल का ताल्लुक़ है, फिर रिलीजियस लीडर्स ने बाद में
मतलब अच्छा रोल किया, मुस्बत रोल किया, लॉकडाउन की हिमायत में रहे और लोगों को ये मशवरा भी देते रहे कि क्या कुछ करना चाहिए, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में। इवन मस्जिदों में उन्होंने किया कि अगर जिन कुछ मस्जिदों में जहाँ नमाज पढ़ी जाती रही लेकिन वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का रहा ख्याल किया जाता रहा। उसमें अखबारात ने भी हमारा रोल भी ओवरऑल रहा उनके साथ हिमायत में, या उनके साथ जो उनके स्टेटमेंट होते थे, उनके बयानात होते थे, या कभी उनका कमेंट लिया, कभी इंटरव्यू किया, ये चलता रहा। इसमें कभी कोई मिस इन्फॉर्मेशन भी, यहाँ कोई मिस इन्फॉर्मेशन उसको ठीक करना, ये रहा। मतलब ये तो पार्ट ही है, जॉब का पार्ट ही है। डॉक्टर साहब, क्या रिलीजियस लीडर्स का डायरेक्ट एक्टिव पार्ट है, जैसे डेवलपमेंटल वर्क्स है, हेल्थ केयर वर्क्स है, या एजुकेशन के मुतल्लिक जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका रोल है डायरेक्टली कम्युनिटी के साथ? लेकिन देखिए, रिलीजियस लीडर्स का मिसाल के तौर पर हेल्थ के इशू से डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो है, ओवरऑल उनका जो इम्पैक्ट सोसाइटी में है, उसकी एक्टिव पार्ट है। उसकी वजह से हर सेक्टर में उनका ज़रूरी बनता है। उनकी कॉपरेशन या उनकी राय या उनका किसी मामले में कोई उनका क्या कहेंगे वो, ये है। मिसाल के तौर पर यहाँ कोरोना के बारे में इब्तिदा में हुआ, यहाँ मतलब कंट्रोवर्सी हुई। कुछ मौलवी साहबान ने कहा कि नहीं जी, लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है, ये क्या है, ये कोई, उन्होंने कहा फॉरेन से आया है कोई बात, हम नहीं मानेंगे। फिर रिलीजियस लीडर्स ने ही उनको, दूसरे रिलीजियस लीडर्स ने समझाया, नहीं जी आप गलत कहते हैं, ये हमको करना है। ये मतलब ये रहा एक सोसाइटी में उनका रोल है, उसके हवाले से हर सेक्टर में वो इफ़ेक्ट होता है। पेंडेमिक की बात हुई, पेंडेमिक से पहले की अगर बात करें कि वो क्या रोल रहता है इनका? रोल रहता है, हाँ, रिलीजियस लीडर्स का रोल रहता है ओवरऑल, क्योंकि रिलीजियस लीडर्स आर एन इम्पॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। बात करेंगे प्रोफेसर शुजात खान साहब से, जो सेक्रेटरी है अंजुमन इमामिया, जो यहाँ पे जम्मू में शिया कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। तो प्रोफेसर साहब, अगर हम जम्मू और कश्मीर की जो सोसाइटी है उसमें कितना अहम रोल बनता है रिलीजियस लीडर्स का? सर, बड़ा अच्छा और अहम क्वेश्चन आपने पूछा कि रिलीजियस लीडर्स जो हैं इनका वाकई बहुत इम्पेक्ट है सोसाइटी पे। आप आजकल देख भी रहे हैं जिस हिसाब से मीडिया इतनी तेज़ी से जो है वो अपना काम प्ले कर रहा है, फिर वो चाहे आपका न्यूज़ चैनल्स का मीडिया हो या सोशल मीडिया हो। आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा अगर इन चीज़ों को कोई इम्पेक्ट करता है, अगर कोई सबसे ज़्यादा हावी रहता है, तो वो यही रहता है कि जो आपके रिलीजियस जो फेथ हैं, जो आपके रिलीजियस लीडर्स हैं वो। अब इसमें दोनों तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। रिलीजियस लीडर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो प्योर रिलीजन है, चाहे वो कोई भी हो, उसको लोगों के सामने लाए, और जो फॉलो करने वाले लोग हैं उनकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर कोई रिलीजियस लीडर कोशिश करता है कि अपने ग्रंथ से या अपनी बुक से हट के कुछ डेलिब्रेट करना चाहता है, तो मेरे ख्याल से ये यूथ का, जो आज का यूथ है या जो लोग जो उनको सुनते हैं, उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि वो खुद भी इस चीज़ को स्टडी करें और उसके बाद उनको क्वेश्चन करेंगे, अगर आप ये चीज़ माशरे में दे रहे हैं तो क्या ये चीज़ हमारे रिलीजन से वाबस्ता है या नहीं। कोविड-19 में आपने किस तरह अपनी कम्युनिटी की हेल्प की, जबकि मुख्तलिफ SOPs जारी की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, गाइडलाइंस जारी की गई थी, उन गाइडलाइंस को आपने किस तरह फॉलो करके अपनी कम्युनिटी की मदद की? सर, ऐसा है कि आपने देखा होगा कि जब ये पैंडमिक जो है दुनिया भर को अपनी गिरफ्त में ले रहा था, तो उसी दौरान हिंदुस्तान में भी जो है इसके पेशेंट्स दिखने, इसके असर जो है वो दिखने शुरू हो गए। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक लॉकडाउन जो है वो मार्च में अनाउंस किया। मार्च में लॉकडाउन अनाउंस होने के बाद हमने भी कोशिश की कि हमारी जो मैक्सिमम रिलीजियस गैदरिंग्स जो हैं, या हमारी जो भी नमाज वगैरह होती है, या कोई भी ऐसी गैदरिंग जहाँ पे हमारी पूरी कम्युनिटी इकट्ठी होती है, हमने कोशिश किया कि हम उसको डेफर करें। और हमने जो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट जो हर हफ्ते हमारी एक्टिविटी रहती है, जो नमाज जुम्मा जिसको बोलते हैं, वो आपने देखा होगा कि हरम से लेकर यहाँ हिंदुस्तान तक हर जगह पे जो है उसको बंद किया गया। तो रिलीजियस जो एक्टिविटीज़ थी वो भी इसी तरह से हमारी जो है वो बंद हुई। लेकिन 3-4 महीने के बाद ईद के दिनों में भी हमारे कॉन्टीन्यूसली हम इंटरनेट पे ये कांटेक्ट करते रहे लोगों के साथ, और लोगों को समझाते रहे। डिफरेंट मीडिया हाउसेस में हमने इंटरव्यूज़ दिए कि इस बार ईद जो है उसको कोशिश करें कि लो प्रोफाइल में मनाया जाए,
दोनों ईद जो थी वो बड़े लो प्रोफाइल में मनाई गई, और कई लोगों ने इवन कुर्बानी जो है उसको भी डेफर किया कि आपको हर जगह जाना पड़ेगा, लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा कुर्बानी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो हमने खुद भी कुछ एक गाइडलाइंस जो थी अपनी कम्युनिटी को और अपनी जो सोसाइटी है मुस्लिम सोसाइटी, उनको थ्रू टाइम टू टाइम, थ्रू इंटरनेट, टाइम टू टाइम, थ्रू मीडिया हाउसेस हम कोशिश करते रहे कि ये इंटरव्यूज़ जो है ये हमारे लोगों तक जाएं और लोगों को एक मैसेज मिले। उसके बाद हमारे पास जो सबसे बड़ा इवेंट जो रहा हमारा वो रहा मुहर्रम का। तो ये आपको पता है कि 10 दिन मुहर्रम के जो हैं ये मतलब गैदरिंग्स जो हैं हमारे इमाम बारगाह में चलती रहती हैं, लेकिन इससे पहले गवर्नमेंट की SOPs आ गई थी कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके अपनी मजलिस जो है उनको चला सकते हैं। तो बजाय इसके कि हम हमारे जो इमाम जुम्मा थे हमने उन्हीं को कहा कि आप जो मजलिसें हैं, जो वाक़या करबला है, उसको ये 10 दिन तक जो आप खुद से वहाँ पे डिलीवर करें। और हमने पूरी प्रॉपर SOPs फॉलो करके विद सैनिटेशन ड्राइव और आपके मास्क जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए। और यहाँ पे जितनी भी हमारी मजलिसें थी, जितनी भी तकरीबात थी, वो कट शॉर्ट करके इन 10 दिनों में सिर्फ शाम के टाइम पे जो है वो मजलिसें जो है वो बर्पा की इमाम बारगाहों में। जो हमारी फ़र्श अज़ा हर साल जो बिछती है, पिछले 1400 साल से एक रिवायत चल रही है, तो वो हमने अज़ाए हुसैन जो है वो मनाया यहाँ पे। लेकिन ये है कि जो गवर्नमेंट की SOPs थी उनको प्रॉपर फॉलो किया। प्रोफेसर साहब, जैसा कि आपने कहा कि हमने कुछ ऑनलाइन प्रोविज़न भी रखा था, बट जम्मू एंड कश्मीर में लो इंटरनेट होने की वजह से आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा जो आपको फॉलोअर्स को मैसेज पहुंचानी थी वो पहुंचाने? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया, क्योंकि जैसे हम लोग हैं तो हमारा ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट है, इसी तरह से यहाँ पे कुछ फार फ्लंग एरियाज़ भी हैं हमारे, जैसे पुंछ है, लोरन है, मंडी है, गुरसाई है, और उसके बाद आपका अगर आप चले जाएँ पुंछ में ये, और उसके बाद फिर रजौरी है। इसी तरह से कश्मीर में भी काफ़ी ऐसी जगहें हैं जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं। वहाँ पे बिल्कुल आपकी बात सही है कि ये 2G हमारा जो था वो चल रहा था, उस पर लाइव तो चल जाता है, लेकिन ये है कि जो एक्सेस करने वाले लोग हैं वहाँ पे अगर नेटवर्क की प्रॉब्लम हो तो मैं मानता हूँ इस चीज़ को, वहाँ ज़रूरी प्रॉब्लम आई होगी। लेकिन जम्मू में कुछ लोगों ने कनेक्शंस जो है वो ले लिए हुए थे, तो काफ़ी हद तक हम मतलब कामयाब रहे हैं लोगों को ये पहुँचाने में, मैसेज जो है करबला का वो पहुँचाने में। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे जो सफ़रर हैं वो बॉर्डर एरियाज़ हैं, और जो हायर अपर रीचेज़ हैं वो सफ़रर हैं। वहाँ पे नो डाउट वहाँ पे ना तो अभी तक कोई फाइबर ऑप्टिक पहुँची है और ना ही वहाँ पे कोई इस तरह का प्रोविज़न है। तो बीइंग ए टीचर भी मैंने देखा कि कई स्टूडेंट्स को भी बड़ी प्रॉब्लम आई है अपने लेक्चर्स वगैरह लेने में। सर, अगर हम लोकल मीडिया की बात करें और आपके काम की बात करें, तो लोकल मीडिया कितना हेल्प करता है आपको, आपकी जो मैसेज है लोगों तक पहुँचाने? सर, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि इस वक्त जो आज रोल प्ले कर रहा है आपका किसी भी चीज़ को, किसी भी मैसेज को डिस्ट्रीब्यूट करने में या टेलीकास्ट करने में या फ्लरिश करने में सोसाइटी में, तो मेरे ख्याल से उसमें मीडिया जो है वो हर एक स्टेट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आज की डेट में एक लोकल मीडिया जो है वो एक किस्म का बैकबोन बना हुआ है इन्फॉर्मेशन की। और हमारे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन मीडिया के कोई 100 के करीब यहाँ पे अब पोर्टल जो हैं वो रन कर रहे हैं हमारी, सिर्फ हमारे डिवीज़न की अगर मैं बात करूँ, जम्मू डिवीज़न की, तो इसके साथ साथ नेशनल मीडिया भी है। लेकिन ये है कि लोकल मीडिया जो है वो काफ़ी हद तक हेल्प करता है हमारे को। तो जो हमारे ये रिलीजियस मैसेजेस होते हैं इनको पहुँचाने के लिए, अभी मैं आपको एक बताता हूँ, पीछे एक इंसिडेंस जम्मू में हुआ था, शायद आपको भी पता होगा, जो प्रॉफिट के अगेंस्ट किसी ने कुछ बोल दिया था, तो उसमें भी जो मीडिया है उसने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया, काफ़ी पॉजिटिव रोल प्ले किया, और उनको देख के सोसाइटी ने भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया, जिसकी वजह से एक बड़ा जो एक आप कह सकते हैं एक बड़ा इंसिडेंस होने से जो रुक गया। स्टार्ट में हमने सुना कि आप एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के एक ख़ास मुकाम पे, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किस किस मास मीडिया का इस्तेमाल करती है? जो भी एक्टिविटी हम करते हैं उसको हम प्रिंट मीडिया में दें, और उसको जो हमारा लोकल मीडिया है उसमें हम पब्लिश करें। और जो हमने अपने प्लेटफॉर्म यूज़ किए हुए हैं वो ये है कि हमने एक ग्रुप जो है अंजुमन इमामिया जम्मू करके फेसबुक पे बनाया हुआ है। हमारी जो भी एक्टिविटी होती है, ख़ासकर जो रिलीजियस एक्टिविटी, उसको हम उस पर डालते हैं। और हमारे अपने जो पेजेस हैं, जैसे मतलब मेरा अपना जो प्रोफाइल है मैं उस पर भी उसको यूज़ करता हूँ, और यूट्यूब चैनल है हमारा एक अंजुमन इमामिया जम्मू करके, उस पर भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। साथ बात करने के लिए हैं सीनियर जर्नलिस्ट जनाब सुरेंद्र शर्मा जी। आप हमें अपने बारे में और अपनी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ मुख्तसरन बताइए।
देखिए लाल साहब, करीब करीब 20 साल होने को है मुझे इस प्रोफेशन में, इस लाइन में, और अलग अलग चैनल्स में काम करने का मौका मिला, प्रिंट में भी काम करने का मौका मिला, इलेक्ट्रॉनिक में भी काम करने का मौका मिला। तो कोशिश की है अभी तक हमने कि जो इसका मकसद है मीडिया का उसको अचीव किया जाए, उसकी तरफ बढ़ा जाए, और एक पब्लिक वेलफेयर के नज़रिए से, सोशल वेलफेयर के नज़रिए से हम कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मेरा मानना है कि आज के समय में मीडिया की भूमिका, मीडिया का रोल जो होना चाहिए, शायद उस दिशा में हम थोड़ा पीछे रह रहे हैं, और मीडिया जो है वो आज सिर्फ एक कम्युनिकेटर बनकर रह गया है। मैं अभी चैनल 1 का एडिटर हूँ, और इससे पहले गुलिस्तान, जेके चैनल, 7C, एक न्यूज़ मैगज़ीन निकाल ली थी मैंने, खरी खरी। तो ETV में 2 साल जो है वो मुझे काम करने का मौका मिला। तो जहाँ पे जैसा मौका मिलता गया, जैसे हालात बनते गए, तो हमने कोशिश की है कि ईमानदारी से इस प्रोफेशन के साथ ईमानदारी बरती जाए। सर, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये हमें बताइए कि क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन किसी खास एज ग्रुप को टच करके न्यूज़ बनाती है? देखिए लाल साहब, अभी फ़िलहाल अगर चैनल 1 की बात करें तो चैनल 1 जो है वो एक पोर्टल चैनल है, सोशल मीडिया चैनल है, और सोशल मीडिया में जैसा कि आप जानते हैं कि जो एक एज ग्रुप स्पेशलाइजेशन जो होती है, यंग एज जो है वो उसको फोकस में रख के काम किया जाता है, ताकि वो सोशल जो मीडिया में जो यंग चंक है उसको एड्रेस कर पाए। लेकिन हमारी ये कोशिश रहती है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को ही ना देखा जाए, एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं कि सोसाइटी में, समाज में, गवर्नमेंट लेवल पे जो कुछ होता है उसको एक न्यूज़ सेंस देकर, ताकि यंग स्लॉट जो है वो भी, उसको भी लगे कि हाँ इस खबर में हमारे लिए भी कुछ है, और जो मीडियम एज ग्रुप है उससे ज़्यादा भी जो एज ग्रुप है उनको भी लगे कि हमारे लिए भी एक न्यूज़ टेस्ट इसमें है। तो उसको ध्यान में रख के हम ये काम करने की कोशिश करते हैं। अप्रॉक्सीमेट कितनी व्यूअरशिप होगी आपकी, कितनी फॉलोअर्स होंगे आपके? देखिए इस वक्त जो है वो करीब करीब 2.5 लाख फॉलोअर्स हैं। सर, पिछले मार्च से क्योंकि पैंडेमिक चल रहा है, लॉकडाउन रहा जी, और जम्मू कश्मीर में एक और प्रॉब्लम रही कि 4G इंटरनेट नहीं चल रहा है, काफ़ी स्लो नेट चल रहा है। विद रेस्पेक्ट टू पैंडेमिक कितनी प्रॉब्लम्स आई आपको अवेयरनेस पहुंचाने में लोगों को, जब एक तरफ लॉकडाउन था और दूसरी तरफ जो फास्ट नेट था वो भी बंद किया हुआ था? अभी सोशल मीडिया का तो सारा काम ही इंटरनेट पे है, तो 2G पर जाहिर सी बात है बड़ी मुश्किल है। और पेंडेमिक को लेकर एक बात का क्रेडिट तो मैं पूरे देश के मीडिया को ज़रूर दूंगा, इस बात का कि शायद भारत सरकार इतनी जल्दी हलचल में नहीं आती अगर कोरोना महामारी को लेकर मीडिया इतना शोर नहीं डालता। मीडिया ने इस बात को उठाया, इस खतरे को जाना, इस खतरे को समझा, और पहले ही देश में इस बात की अलख जगाई कि जो कोरोना महामारी है उसका खतरा भारत में भी उतना ही बढ़ सकता है जितना कि चाइना में बढ़ सकता है। उसके बाद जो है वो देश की सरकार ने कई सारे जो स्टेप्स हैं वो लिए। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं लॉकडाउन में, जैसा इंटरनेट सर्विस बंद हो गई, 4G सर्विस जो है वो बंद हो गई, 370 जैसा ही सरकार ने जो ख़त्म किया उसके बाद से अभी तक जो है वो बंद है। तो बहुत बड़ी सारी दिक्कत लोगों को हुई, चूँकि एक ही कम्युनिकेशन सिस्टम है लोगों के पास कोरोना अपडेट्स को जानने के लिए, वो है मीडिया। सरकार के पास भी एक ही मीडियम है अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए कि कोरोना को लेकर क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या SOPs आ रही हैं, क्या डूज एंड डोंट्स आ रहे हैं, वो कम्युनिकेशन लोगों तक पहुंचाया जाए। अब मीडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इंटरनेट है नहीं, तो लोगों को कैसे समझाया जाए, लोगों तक ये बात कैसे पहुंचाई जाए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। दूसरा ये भी एक दिक्कत ये भी आई कि हम जैसा मान लीजिए प्रोग्राम्स कर रहे हैं, लाइव्स कर रहे हैं, लेकिन उसका व्यूज़ नहीं मिल रहा, उसका व्यूअरशिप नहीं है, चूँकि इंटरनेट जो है वो नहीं है और 2G पे आप देख नहीं सकते। क्या आपने किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम किया है जो इस फील्ड में लोगों का काम करती थी? डिफरेंट शेड्स ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अच्छा काम कर रही थी, हमने उनका मैसेज पहुंचाया। जो रिलीजियसली जो लीडर्स जो है, रिलीजियस लीडर्स जैसे
अपने एक पर्टिकुलर जो उनका एक फॉलोइंग रहती है उन तक बात पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन एक टैग जो है वो हमने कोशिश की कि एक टैग ना लगे। एक दिन मैं बड़ा इंटरेस्टिंग आपको वाकया सुनाऊं कि हम रिपोर्टिंग कर रहे थे ज्यूल चौक के पास, तो रामाकृष्ण मिशन वाले जो लोग हैं, वो जो कोरोना वॉरियर्स हैं, पुलिस के जो लोग हैं, दिन रात ड्यूटी कर रहे थे, तो उनको चाय बिस्किट ये सब चीज़ें सर्व कर रहे थे। तो ऑन द स्पॉट जो जो चीज़ें हमें देखने को मिली, जो हमें लगा कि ये एक कंट्रीब्यूशन हो सकता है, इनके थ्रू अच्छा मैसेज जा सकता है, इनके थ्रू जो है वो कोविड को लेकर डूज एंड डोंट्स क्या हैं वो लोगों को बेहतर तरीके से समझ आ सकते हैं, तो टाइम पे हमने इन चीज़ों को प्रमोट किया है। लेकिन पर्टिकुलर किसी एनजीओ किसी चीज़ के साथ हम एक पर्टिकुलर एफिलिएशन जो है वो हमने नहीं होने दी है। हिलाल साहब। सर, ऑनरेबल गवर्नर साहब के जो एडवाइज़र है बशीर खान साहब, रिसेंटली उनका एक स्टेटमेंट आया कि हमारा जो समाज है जम्मू कश्मीर के लोगों का, तो उसमें रिलीजियस लीडर्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। क्या आपको लगता है कि रिलीजियस लीडर्स इस पैंडेमिक में एक नहायत ही उम्दा रोल निभा सकते हैं इस क्राइसिस से लोगों को निपटने में? देखिए, ज़ाहिर तौर पर जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनका एक बड़ा ही अहम रोल बनता है। आपने देखा होगा जैसे ये जब एक तरह से शुरुआत हुई हिंदुस्तान में कोरोना महामारी की, और बहुत सारे जो ये दिक्कत भी आ रही थी कि जो लोग हैं वो मंदिरों में भी जा रहे हैं पूजा करने, मस्जिदों में भी जा रहे हैं, गिरजाघरों में भी जा रहे हैं, तो उनका फिर सरकार ने एक कोशिश की कि रिलीजियस लीडर्स के ज़रिए ही इसका मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जाए कि आप घरों से ही इबादत करिए। आपको याद होगा ईद के मौके पर भी बड़े शाही इमाम जो हैं अलग अलग मस्जिदों के, उन्होंने मैसेज दिया कि आप घर से ईद जो है वो की नमाज अदा करिए। तो ये बिल्कुल बनता है, और मेरा ये मानना है कि रिलीजियस लीडर्स जो है वो हम जैसा सुनते हैं कि बड़े जो रिलीजियस कथाएं हैं वही सुनाना उनका मकसद नहीं है। मुझे लगता है उससे बढ़कर भी एक समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि रिलीजियस लीडर्स को लोग फॉलो करते हैं, रिलीजियस लीडर्स की फॉलोइंग होती है, लोग उनकी बात मानते हैं। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा बदलाव समाज में, सोसाइटी में सोच को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव रिलीजियस लीडर्स जो हैं वो ला सकते हैं। सर, जैसा हम अभी बात कर रहे थे 4G इंटरनेट बैन का, जी, तो क्या जितने भी लोकल यहाँ पे मीडिया हाउसेस हैं, क्या उनकी सोशल मीडिया आउटरीच है, और कितना इफेक्ट हुए वो इस 4G बैन की वजह से? देखिए लाल साहब, बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, और जैसा मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते ब्रॉडबैंड लगाना, और दूसरा ये है कि एक कम्युनिकेशन जो लोगों के साथ इंटरनेट के ज़रिए होता है, लाइव्स होते हैं, वो उस पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है, व्यूअरशिप पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक कोविड में जैसा अभी इकोनॉमिक स्लोडाउन भी है, तो उसका भी एक बहुत बड़ा परेशानी जो है वो लोगों को झेलनी पड़ रही है, क्योंकि आप एडवर्टाइजमेंट किसी के पास लेने जाते हैं तो पहले तो आपसे पूछेगा कि बताइए आपका फॉलोइंग कितनी है, आपका व्यू क्या है। तो 4G की वजह से जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा असर जो है वो पड़ा है, मीडिया पर भी पड़ा है, स्टूडेंट्स जो हैं उनके ऊपर भी पड़ा है, डॉक्टर्स के ऊपर भी पड़ा है। तो ये अपील लोगों की तरफ से लगातार मीडिया उठा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो 4G इंटरनेट सेवा है उसको जल्द से जल्द बहाल किया जाए। सुरेंद्र शर्मा जी, आपका और आपकी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत शुक्रिया हम अदा करते हैं कि आपने अपनी बिजी शेड्यूल में हमें वक्त दिया और हमने इस टॉपिक पे बात की। लाल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और केसिट का भी खास तौर पर JKPI आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया इन सब इश्यूज़ पर बात रखने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहब, अपने बारे में मुख्तसरन वजाहत करें, आपकी तालीम कहाँ पे हुई है और आप अपनी फ़राइज़ कहाँ पे अंजाम दे रहे हैं? क्योंकि मेरा नाम मुबशर अहसन वानी है, मैं इलाका शोपियान से ताल्लुक़ रखता हूँ, और मेरी इब्तदाई तालीम तरबियत शोपियान में ही हुई है। उसके बाद मैं श्रीनगर आया हूँ 1998 में, और 1998 से श्रीनगर में ही मैंने तालीम हासिल की है, यहाँ तक कि अल्लाह के फज़ल व एहसान से गुज़श्ता साल 2019 में मैंने अपना PhD प्रोग्राम जो है वो कश्मीर यूनिवर्सिटी में सबमिट किया है।
تو اس اعتبار سے تعلیمی حساب سے اللہ کے فضل و احسان سے میں نے PhD کیا ہوا ہے، اور اس وقت میں شوپیان میں جامعہ اہل حدیث بازار مسجد میں خطبہ جمعہ کے فرائض انجام دیتا ہوں۔ مولانا صاحب، کووڈ-19 یا جس کو کورونا وائرس کہا جاتا ہے، وبا میں آپ نے کس طرح عوام کی خدمت کی؟ چونکہ یہ جو کووڈ-19 ہے، یہ وبائی بیماری جب دنیا میں پہلے متعارف ہوئی تو یہاں کے علماء، یہاں کے سکالرس نے، مذہبی رہنماؤں نے لوگوں کو اس بارے میں آگاہ کیا۔ جمعہ کے خطبات کے دوران، اسی طرح سیمینارز کے ذریعے سے، اور جو دروس منعقد کیے جاتے ہیں، یا اسی طرح جو لوگوں میں مختلف قسم کے اویئرنیس پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم نے لوگوں تک یہ بات پہنچائی کہ کووڈ-19 ایک مہلک مرض ہے، ایک مہلک بیماری ہے، اور یہ کمیونیکیبل ڈیزیز مانی جاتی ہے۔ اس حوالے سے ہمیں آگاہ رہنے کی ضرورت ہے، اور جو بھی اس حوالے سے ہیلتھ جو ماہرین ہیں ہیلتھ کے، صحت ایڈوائزری جو آئے اس پر ہمیں پوری طرح سے عمل کرنا ہے۔ اور چونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا دوسرا کوئی ذریعہ یا دوسرا خدمت کا کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے، ہم زیادہ سے زیادہ یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو ہم زبان سے کہہ سکتے ہیں، اور ہم نے لوگوں کو جو گائیڈ کرنا تھا اس میں الحمدللہ ہم نے کافی کوشش کی۔ مولانا صاحب، محدود انٹرنیٹ سروس ہونے کی وجہ سے آپ کو کتنی مشکلات پیش آئی اپنی بات اپنے لوگوں تک پہنچانے میں؟ کیونکہ ہمارا جو فیلڈ ہے اس کا دار و مدار انٹرنیٹ پر نہیں ہے۔ ہم فیس ٹو فیس لوگوں کے پاس جاتے ہیں، جمعہ کے روز ہم خطبہ میں لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں، جو کچھ ہمیں لوگوں تک میسیج پہنچانی ہو وہ جمعہ کے دن پہنچاتے ہیں۔ لیکن یہ جو کورونا وائرس کا پیریڈ آیا، اس میں جو سب سے پہلی چیز اور سب سے پہلا قدم جو یہاں کے مسلمانوں نے اٹھایا، یہاں کے مفتی اعظم کشمیر جو ہے مفتی ناصر الاسلام صاحب، انہوں نے اپنے گھر پر یہاں کے مذہبی رہنماؤں کی میٹنگ بلائی۔ تو اس کے بعد اسی طرح دوسری یہاں کی جو تنظیمیں ہیں، یہاں جو سب سے پہلا قدم اٹھایا گیا وہ یہی کہ جمعہ کی نمازوں کو محدود کیا گیا، یا آپ یہ کہیے کہ موقوف کیا گیا۔ تو جب جمعہ کی نمازوں کو موقوف کیا گیا اور ہم جمعہ کے دن لوگوں تک پہنچ نہ پائے، تو اس صورت میں ہمیں پھر انٹرنیٹ کی ضرورت پڑی، ورنہ اصل میں ہمیں انٹرنیٹ، ہمیں اور لوگوں تک پہنچنے کے لیے انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو اس وقت ہمیں یہ محسوس ہوا کہ 4G انٹرنیٹ کی کتنی ضرورت تھی ہمیں، کیونکہ ہم کوئی پروگرام دیتے تھے، پھر جب اپلوڈ کرنا ہوتا تھا اسے، تو جہاں ہمیں 1 گھنٹے کی ضرورت تھی تو وہاں 1 دن لگتا تھا۔ لوگوں تک صحیح وقت پر صحیح میسیج پہنچانے میں ٹائم لگتا تھا۔ اس حوالے سے ہمیں کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، ظاہر سی بات ہے، لیکن پھر بھی ہم نے کوشش کی دیر سے ہی صحیح لوگوں تک میسیج پہنچائیں۔ وہ صاحب، مقامی میڈیا کتنی حمایت کرتا ہے آپ کی بات لوگوں تک پہنچانے میں؟ چونکہ یہ میڈیا کا زمانہ ہے، جیسے آپ خود جانتے ہیں، یہ میڈیا کا دور ہے، اور یہ آج کی ایج ہی جو ہے میڈیا کی ایج ہے۔ تو مقامی میڈیا جو ہے ان کا بہت ہی اچھا رول رہا، ہم ان کے شکر گزار ہیں اس حوالے سے۔ جب بھی کسی بھی مذہبی تنظیم یا مذہبی لیڈر کی طرف سے کوئی بیان آیا تو فوراً یہاں کی جو نیوز چینلز ہیں انہوں نے فوراً یا تو اسے پیش کیا پڑھ کر کے، یا سکرال کی صورت میں اسے اپنی نیوز چینلز پر چلایا اور لوگوں کی توجہ اس طرف مبذول کی۔ یہاں پر جو کشمیر میں گلستان نیوز چینل ہے، نیوز 18 اردو ہے، اسی طرح دوسری جو چینلز ہیں یہاں کی، مطلب مقامی بھی اور بھی کچھ چینلز ہیں، تو ان سب چینلز نے بہت ہی زیادہ جو ہے اس معاملے میں اپنا رول نبھایا اور بہت ہی زیادہ تعاون دیا۔ بشیر صاحب، اپنے فرائض کو انجام دینے کے لیے آپ کس میڈیا کا عام طور پر استعمال کرتے ہیں؟ دیکھیے، میری اپنی ذاتی میڈیا ہینڈل ہے، چونکہ میں فیس بک یوز کرتا ہوں، فیس بک پر میرے نام کا پیج ہے، میرے نام کا اکاؤنٹ ہے۔ میں دوسروں کے جو پیجز وغیرہ ہیں وہ زیادہ یوز نہیں کرتا ہوں، میں اپنی میڈیا ہینڈل سے کام چلاتا ہوں۔ واٹس ایپ پر میرا ذاتی گروپ ہے، اسی طرح ٹیلی گرام پر میرے الگ الگ گروپس ہیں، چینل ہے، جس میں قریب 1000 تک جو ہے یوتھ اس میں ایڈ ہیں، اور اسی طرح میری جو ہے یوٹیوب چینل ہے میرے نام سے، اس پر باضابطہ طور پر میرے ویڈیوز اور آڈیوز وغیرہ اپلوڈ ہوتے ہیں۔
तो इसी तरह ट्विटर पर मेरा अकाउंट है, उसमें बाज़ाब्ता तौर पर मेरी जो मैसेजेस हैं वो डिस्प्ले होती हैं। तो इन चीज़ों का जब मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, मैं जब फेसबुक पेज पर या फेसबुक अकाउंट पर कोई चीज़ अपलोड करता हूँ, तो फिर यहाँ के जो दूसरे लोग हैं, मीडिया पर्सनस हैं, यहाँ के जो फेसबुक पेज चलाने वाले हमारे जवान हैं, उनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो वो हमारी मैसेज को जो है शेयर करते हैं, फिर ये मैसेज आगे लाखों लोगों तक पहुँचती है। सर, आप अपना तारुफ दीजिए और किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ वापस रखते हैं? जी, मेरा नाम मंसूर अंजुम है। मैं रोज़नामा औकाफ का एडिटर, प्रिंटर, पब्लिशर हूँ और पिछले 40 साल से मैं ये अखबार चला रहा हूँ। सर, आप थोड़ा और तफसील से बता सकते हैं कि जो लोकल मीडिया का कितना रीच है? कश्मीर में लोकल मीडिया का हमेशा से ही बड़ा असर रहा है और इसकी रीच भी बहुत ज़्यादा रही है, क्योंकि लोकल प्रिंट मीडिया के अलावा यहाँ और कोई इफ़ेक्टिव मीडिया नहीं था। अब के मीडिया के बहुत सारे इदारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है तो उनकी, लेकिन जो असर प्रिंट मीडिया का है, चाहे वो अंग्रेज़ी में है या उर्दू में है, लोकल का, वो काफ़ी ज़्यादा है, उसका असर भी काफ़ी ज़्यादा है। और लोगों के लिए, लोग सुबह अखबार लेते हैं तो जो भी उसमें होता है, चाहे मज़ामीन होते हैं, चाहे ख़बरें होती हैं, उनका अपना जो इम्पैक्ट होता है वो असर करता है लोगों को। आपके जो न्यूज़पेपर के जो रीडरशिप है या व्यूअरशिप है, क्या कोई अप्रॉक्सीमेट नंबर बोल सकते हैं आप, या जो कोई ऐसा टारगेट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जिस पे आप फोकस कर रहे हैं? अगर आप सर्कुलेशन की बात करते हैं तो पिछले 30 साल के दौरान कश्मीर में जो हालात रहे, उनकी वजह से सर्कुलेशन एक जगह नहीं रही है, उसमें फ्लक्चुएशन आती रहती है। कभी यहाँ हालात ख़राब होते हैं, कर्फ्यू होते हैं, हड़तालें होती हैं, तो अखबार हर जगह नहीं पहुँचा जा सकता है। उस तरह से कभी सर्कुलेशन काफ़ी डाउन हो जाती है, कभी फिर अपनी सतह पर आ जाती है। तो इस तरह से अभी भी पिछले साल 5 अगस्त के बाद कश्मीर में जो हालात रहे, उनकी वजह से सर्कुलेशन सारे अखबार की काफ़ी डाउन हो गई और कोरोना वायरस के आने के बाद उसमें और भी ज़्यादा इजाफा हुआ, और भी ज़्यादा डाउन हो गई है सर्कुलेशन। सर, आपके मद्देनज़र से जो हमारे मजहबी लीडर्स हैं, तो आप किस तरह देखते हैं कि उनको किस तरह इंगेज किया जा सकता है? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, कोरोना वायरस के बाद यहाँ रिलीजियस लीडर्स ने एक पॉजिटिव किरदार अदा किया। उन्होंने खुद किया, किसी ने उनको ऐसा करने के लिए नहीं कहा। उन्होंने सबसे पहले लोगों से ये अपील की कि वो मस्जिदों में गैदरिंग्स न करें, नमाज घर में पढ़ें, जिसकी वजह से यहाँ रिलीजियस लीडर्स का बहुत ज़्यादा असर है। तो उसकी वजह से ये मुमकिन हुआ कि लोग मस्जिदों में नहीं गए। हालांकि कहीं कहीं जगह पर उन्होंने नहीं माना, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा असर हुआ उसका, और उसके अच्छे नताइज भी आए। सर, जो पेंडेमिक अभी हो रहा है और जो इसके साथ में हमारे यहाँ 4G इंटरनेट बैन है, आपको क्या लगता है, जो अब एक साल होने को आया है हमारे यहाँ 4G बैन है, आपको क्या लगता है कि जो लोकल मीडिया है वो कितना, उसका क्या रोल, वो कितना सपोर्ट करता है पब्लिक हेल्थ मेजर्स को ऐसे वक्त में? मैं आपको बताऊं कि कोरोना वायरस का कश्मीर में अब बहुत ज़्यादा फैलाव हो चुका है, लेकिन इसको कम किया जा सकता था, इसको रोका जा सकता था अगर 4G इंटरनेट कश्मीर में चालू होता। 4G इंटरनेट न होने से लोकल मीडिया के लिए बहुत मुश्किलात आई, तो वो काम नहीं कर सके जो वो कर सकते थे या जो वो करते। तो उसकी वजह से इसमें काफ़ी असर पड़ा। मतलब लोकल एक ज़रिया यही था जो लोगों को समझा सकता था। गवर्नमेंट की तरफ से जो इक़दाम किए जा रहे थे वो कहाँ पर गलत थे, कहाँ पर सही थे, इस बारे में भी मीडिया एक अहम रोल कर सकता था, लेकिन वो नहीं कर सका क्योंकि खुद मीडिया एक बहुत बड़ी मुश्किल में था। इंटरनेट के बगैर या 2G इंटरनेट से
ایک میڈیا ادارے کو چلانا مشکل ہی نہیں ناممکن. تو ایسے حالات میں بھی پھر بھی یہ بہت بڑا کوئی معجزہ ہے کہ لوکل میڈیا یہاں کام کرتا رہا. کووڈ-19 کے دوران آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ آپ مشکلات کی بات کرتی ہیں، یہ مجھے بہت چھوٹا لفظ لگتا ہے. اس میں ہماری مشکلات کی کوئی حد نہیں ہے، اس وجہ سے کہ جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہمارے دفتروں میں جو بھی لوگ کام کرتے تھے ان میں سے اکثر گاؤں کے رہنے والے تھے. انہیں واپس گھر جانا پڑا کیونکہ ہم نہیں میرے آفس میں کمپیوٹر آپریٹرز تھے، وہ گاؤں سے آئے تھے تو وہ واپس گئے. اب وہ گاؤں میں وہاں انٹرنیٹ ہے، کام کر سکتے تھے، لیکن 2G انٹرنیٹ پر کام کرنا بہت مشکل ہے. اور وہ بھی شوپیان میں میرا ایک لڑکا ہے، وہ کام کرتا ہے وہاں سے 2G سے کسی طرح سے وہ مینیج کرتا ہے. لیکن اکثر شوپیان میں ایسا ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے، سرے سے ہی بند ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، وہ فائل نہیں بھیج سکتا ہے، وہ کام نہیں کر سکتا. اس طرح کے بہت سارے چیلنجز ہیں جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑا. حال ہی میں ہمارے ایڈوائزر جو ہیں لیفٹیننٹ گورنر کے مسٹر بصیر خان، جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے جو مذہبی لیڈران ہیں ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ کووڈ کرائسس کو بھی وہ بھی اپنے پلیس پہ فائٹ کر سکیں. آپ کا اس میں کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مذہبی لیڈروں کا اور مذہبی آرگنائزیشنز کا اس کرائسس میں بہت ہی بڑا اور بہت ہی اہم رول بنتا ہے، اور وہ یہ رول کر بھی رہے ہیں. انہوں نے ابھی تک بہت ہی مثبت رول ادا کیا ہے، جس کی وجہ سے پینڈیمک کا مقابلہ کرنے میں ہمیں آسانی ہوئی ہے، گورنمنٹ کو بھی آسانی ہوئی ہے. ورنہ گورنمنٹ کے لیے یہ بہت مشکل ہوگا کہ یہ مذہبی اجتماعات کو روکے. یہ مذہبی لیڈروں اور مذہبی آرگنائزیشنز کی وجہ سے ہے کہ وہ مذہبی اجتماعات نہیں ہوئے. اس طرح سے آگے بھی ان کے لیے بہت ہی اہم رول بنتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ یہ کردار ادا کرتے رہیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے جو لوکل آرگنائزیشنز ہیں ان کا کیا رول رہا ہے یا ہونا چاہیے ان ٹرمز آف لوکل سپورٹنگ ریلیجس جو لیڈرس ہیں ان کو سپورٹ کرنے میں تاکہ وہ پبلک ہیلتھ کرائسس جو ہے وہ مینیج کر پائیں؟ دیکھیے، اس میں ہر ایک کا رول بنتا ہے، چاہے وہ پولیٹیکل آرگنائزیشنز ہے، ریلیجس آرگنائزیشنز ہے یا دوسری آرگنائزیشنز ہے، ایون ٹریڈ یونینز یا دوسرے، سب کا رول بنتا ہے اپنی اپنی جگہ پر. اور اگر سب پوری سنجیدگی کے ساتھ اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے تو ہم اس کرائسس کا مقابلہ کرنے میں ہمیں بڑی آسانی ہوگی. بات کریں گے یہاں کے مشہور و معروف آچاریہ جی سے کہ انہوں نے پینڈیمک میں کس طرح کام کیا اور کون سی پرابلمز ان کو آئی. آچاریہ جی نمسکار. نمسکار. آپ پہلے اپنے بارے میں بتائیے اور جو آپ کی سنستھا ہے اس کے بارے میں بتائیے. دیکھیے، ایسا ہے، مجھے 2003 سے میں سماج کے لیے کام کر رہا ہوں، دیویہ دشٹی کے نام سے ہے. تو جتنے بھی پلینٹ سے جو مومنٹس ہوتی ہیں جس کے کارن ہماری باڈی پہ، ہماری سوسائٹی پہ، ہمارے لوگوں پہ جو اثر پڑتا ہے، اس کے حساب سے لوگوں کو بتانا، ان کو گائیڈ کرنا، اس کے حساب سے ہم کام کر رہے ہیں جموں میں. تو مجھے اب 17 سال ہو گئے ہیں لوگوں کے بیچ میں. اس سے پہلے بھی تھا، لیکن جو پروفیشنلی میں نے شروع کیا وہ 2003 سے سٹارٹ کیا. تو سبھی ورگوں کے لوگوں کے ساتھ جڑتے ہیں، پولیٹیشینز ہیں، بزنس مین ہیں، عام لوگ ہیں، جو غریب طبقہ ہے، سب کے ساتھ میرا جڑا رہنا ہے. آچاریہ جی، کووڈ-19 میں آپ کس طرح اپنی کمیونٹی کو ہیلپ کیا؟ کیونکہ ایک طرف گورنمنٹ کی طرف سے SOP جاری کی گئی تھی، ان کو مد نظر رکھ کر 22 مارچ کو گورنمنٹ کی گائیڈ لائنس آئی تھی اور اس کے بعد ٹوٹل لاک ڈاؤن ہو گیا تھا.
तो जितने लोगों के बीच में हमारा संपर्क था, या जो लोग मेरे साथ फेसबुक पे जुड़े थे या व्हाट्सएप के ज़रिए जुड़े थे या फ़ोन कॉल्स पे जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन लोगों को मैंने तो एक तो फेसबुक पे मैंने अपना पोस्ट डाल दिया था कि ये जो महामारी है इसका एक निश्चित समय है, ये इस समय तक रहेगी और इस समय जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी लोगों को, वो किस तरह की आएंगी, वो मैंने सारा टाइम टू टाइम मैं वहाँ पे देता रहा। कब लॉकडाउन लगना मैं पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था। लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ज़्यादा सड़कों पे भीड़ नहीं करना चाहिए, किसी के साथ अननेसेसरली जाना नहीं चाहिए, मिलना नहीं चाहिए इन दिनों में। और तो मेन जो था ये था कि लोग अपने घरों में बैठें, अपने घर में बैठ के गवर्नमेंट के जो भी गाइडलाइंस है उनको फॉलो करें, उनको सपोर्ट करें। क्योंकि आपका काम लोगों की मुश्किलों को कम करना है, लोगों की मुश्किलों को हल करने का जी। तो आपके इस काम में लोकल मीडिया कितना सपोर्ट करता है? लोकल मीडिया ने तो बहुत बार ट्राई किया मिलने का। उन्होंने 2-3 ने मेरा प्रोग्राम भी रिकॉर्ड किया, वक्त इंडिया ने मेरा प्रोग्राम रिकॉर्ड किया लोगों के लिए, वो पूरी प्रोग्रामिंग करके गए। और जैसे बाकी जो चैनल्स थे उनके साथ तो खैर इंटरेक्ट नहीं हुआ, लेकिन जो नेशनल चैनल हैं उनमें भी 1-2 ने ट्राई किया। तो मैंने तो अपनी तरफ से सबको यही कहा कि ये इसमें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ये टाइम फेज़ है, टाइम फेज़ में ख़त्म हो जाएगा। तो आपको इस समय स्ट्रेंथ रखनी है, अपने अंदर हिम्मत रखनी है, विश्वास रखना है कि गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी आपको एवेन्यूज़ मिलेंगे या जो भी आपको सपोर्ट मिलेगी टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेगी। तो घबराहट में कोई ऐसा एक्शन नहीं लेना है कि जिससे आप पैनिक हो जाओ और उससे अफरा तफरी मचे। तो उसके हिसाब से मैं लोकल मीडिया को भी ये गाइड करता रहा। तो मुझे लगता है कि वो जो एक मैसेज देना था जम्मू वालों को, एक अच्छा मैसेज गया। जम्मू में ऐसा कुछ नहीं हुआ, जम्मू में सब कुछ ठीक ही रहा है।